students, welcome to this video of Standard 5 Math Magic. This is the second part of the video for Chapter 4 Parts and Wholes. And today we are going to see exercise from 7 onward. But before doing exercise, I would like to show you a fraction board. Look here. This is a fraction board. So here one whole circle is given. Look, it is a pie shape, round shape. Here we are taking full one pie, one circle we can say. And that is why it is not, it is written here 1 upon 1. It is not divided in any part. It is one whole. So we are taking one whole from one part. So we write 1 upon 1, 1 upon 1. That means one full. Okay. So we put it back. Now here you see. Look. Here this pie is divided into two parts. Pie means circular disc. It is called pie shape. So here you see. This one whole is divided in two parts. Here these are the two parts. From these two, this is one. From two parts we are taking one. So we write here 1 by 2. 1 upon 2. It is called half part also. Okay. Okay. So this is one another half part. Two half part joins and make one full. Okay. Now here you see this circular disc is divided into three equal parts. 1, 2 and 3. Right? When we take one piece, it is the one out of this three. Okay. So we write 1 by 3. 1 upon 3 means one part from total 3 part. Okay. Similarly here it is 4 part. Look, one disc is divided into 4 part, and when we take only one part, it is called one part from total 4. So it is called 1 by 4. It is also called quarter part. Okay. 4 quarter part combines to make full, one full. Here 3 parts combines to make full. Okay. So after seeing this circular part, let's see rectangle. Look here. This is red long bar. It is not divided in any part. From one part we take one, so it is 1 upon 1, one full. Okay. Then here it is another bar. Just imagine, ऐसा समझो कि that one is divided into two. देखो ये two part हो गया, बराबर. From these two, this is the one part and this is the another part. So we can say it is 1 upon 2. This is also 1 upon 2. 1 upon 2 combines to make one full. 1 upon 2 means half. 1 upon 2 means half. 2 half combines to make one full. Okay. Then it is divided into 3 parts. 3 equal parts. This bar is divided into 3 parts. When you take one, it is called 1 out of 3. Okay. When we divide one thing into 3 parts, then this 3 part combines to make one full again. And each part is called 1 by 3. Okay. Then most bottom part, this green color. This one thing is divided into 4 parts. Each part is one part from among that 4. बराबर. ये 4 में से one part हो रहा है. So it is called quarter. This is another quarter.
दिस इज अनदर क्वार्टर, दिस इज अनदर क्वार्टर, देयर आर 4 क्वार्टर। बराबर, हम ये येलो को निकाल देते हैं और अब देखो, this one part full, this is the half part and this is the quarter part. 2 half part combines to make 1 full. 4 quarter part combines to make 1 full. But here you see, look, 1 by 4, 1 by 4, that combines to form 1 by 2. Okay? 1 upon 4, 1 upon 4 combine होता है तो 1 by 2 हाफ बनता है। देखो आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर 2 हाफ कंबाइन होके ये 1 बनता है। बराबर, तो ऐसे ही ये 4 क्वार्टर कंबाइन होगा तो 1 बन जाएगा। ओके, सो यू सी 2 क्वार्टर मेक 1 हाफ। ओके, another 2 quarter make another half, and then these 2 half combine to make 1 full. Okay, now I think you have understood the relation between these fractions. Okay, now let's move further in workbook. Now it is question number 7. Do as directed. भाई जैसे कहा है वैसे करो। A. Question 1. Fill brown color in 1/4 part of the chocolate. 1/4 part of the chocolate. भाई यहाँ पर ये चॉकलेट दी है, देखो डेयरी मिल्क है ना, और हमें 1/4 मैंने अभी समझाया, इसे क्वार्टर कहेंगे। क्वार्टर यानी 4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट, 4th पार्ट ऑफ द चॉकलेट। बराबर, इसमें हमें ब्राउन कलर करना है। फिल ब्लैक कलर इन 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट ऑफ द चॉकलेट, यानी कि बिल्कुल हाफ चॉकलेट में हमें करना है ब्लैक कलर। हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग, कितना पार्ट बचेगा भाई। 1/4 हम ब्राउन करेंगे, 1/2 हम करेंगे ब्लैक, तो बाकी कितना बचेगा। देखो अभी मैंने आपको समझाया, कुछ समझाया, ठीक है, क्या समझाया। देखो ये तो दिखता ही नहीं है, पर दिखेगा, चलेगा। चलो ये देखो, ये पूरी चॉकलेट है, इसमें से 1/2 हाफ को हमें करना है ब्लैक कलर, यानी कि ये जो पूरी चॉकलेट है ना उसका भी बिल्कुल हाफ हमें कर देना है ब्लैक। तो मान लो कि ये साइड का हम ब्लैक कर देते हैं, तो ये इसके साथ साथ ये नीचे के 2 क्वार्टर भी चले गए, अभी उसको देखना नहीं है। अब बचा हमारे पास 1/2, और 1/2 में कितने क्वार्टर होते हैं, 1/4, 1/4, 2 होते हैं ना। तो हमें 1/4 करना है ब्राउन, तो बाकी कितना बचेगा, 1/4 बच जाएगा। समझे क्या। 1/2 को करना है ब्लैक, तो इसको साइड में कर दो, तो बाकी कितना बचेगा, 1/2। अब 1/2 के अंदर कितने क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है। 2 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर को हमें करना है ब्राउन, तो बाकी कितना बच जाएगा, ये 1 क्वार्टर बचेगा। बराबर, जिसे हमें बाद में रेड कलर करना है। चलो मैं समझाता हूं। देखो यहां पर है टोटल कितने पार्ट, वो काउंट करो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। भाई टोटल 12 पार्ट है। एग्जैक्टली हाफ को ब्लैक करना है, हाफ यानी टोटल 12 पार्ट में से 6 पार्ट। तो मान लो कि ये राइट साइड के हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, तो ये निकल जाएगा यहां से राइट साइड ब्लैक। अब बाकी बचा इस साइड का हाफ, ठीक है। इसमें से हमें 1/4 पार्ट, बराबर, अभी 1/4 पार्ट कितना होगा, तो ये देखो
ये हाफ है, हाफ में 2 क्वार्टर होने चाहिए, तो ये 1 क्वार्टर हो गया ऊपर का, बराबर, और ये नीचे का दूसरा क्वार्टर हो गया। समझे क्या? तो हमें कोई भी एक साइड पे करना है ब्राउन कलर और बाकी जो बच जाएगा वो करेंगे रेड कलर। ठीक है, तो ये पूरी चॉकलेट को कंसिडर करते हुए हमने डिसाइड कर लिया। दूसरी तरह से देखते हैं। दूसरी तरह से देखने से पहले पहले तो हम 1/2 को ब्लैक कर ही देते हैं, बराबर। तो थोड़ा हल्का हल्का ब्लैक कलर करेंगे। ये देखो, तो ये हो गया कलर, ठीक है ना। चलो, अब ये क्वेश्चन तो आंसर हमने दे दिया। फिल ब्राउन कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। भाई चॉकलेट के क्वार्टर 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर पार्ट, चौथे पार्ट में हमें करना है ब्राउन। अब यहाँ पर टोटल 16 पार्ट है, तो 16 4 में से 1, तो 16 में से कितने होंगे, बराबर। 4 में से भाई 16 नहीं 12 पार्ट है, 4 में से 1 तो 12 में से 3 पार्ट्स होने चाहिए, बराबर। वैसे भी आप देखोगे पूरी चॉकलेट में तो ये आधा निकल गया, ये नीचे का 1 क्वार्टर, ये ऊपर का 1 क्वार्टर, तो हम कर देते हैं ये ब्राउन यहाँ पर। तो ये ब्राउन करने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो कितना पार्ट बचा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आप लोग समझ भी गए होंगे। जो बाकी बचा है वो 1/4 पार्ट ही बचा है। देखो अब समझ में आया, ये चॉकलेट का हाफ निकल गया, हाफ में से भी हाफ निकल गया, क्वार्टर पार्ट बच गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1/4 पार्ट बाकी बचा और हमें यहाँ पर करना है रेड कलर, तो ये हो गया रेड, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन बी पर। बी में क्वेश्चन 1 कहा है फिल ब्लू कलर इन 1/3 कैप्स। फिर क्वेश्चन 2 में कहा है फिल ग्रीन कलर इन 3/5 कैप्स। हाउ मेनी कैप्स आर लेफ्ट। भाई ये दो अगर कर लें ब्लू और ग्रीन तो बाकी कितनी कैप बचेगी। चलो इसमें कुछ ज्यादा समझना पड़ेगा। चलो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितनी कैप्स है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 1 15। भाई टोटल 15 कैप्स है यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं 15 कैप्स। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई टोटल 15 कैप्स है आपके पास। देखो अब 15 कैप्स में से अगर 1 कैप को कलर करना है तो क्या कहेंगे 1/15। मान लो कि अब 2 कैप को कलर करना है तो 2/15, 2/15 कहेंगे। ऐसे ही अगर 3 कैप को कलर करना है तो 3/15 कहेंगे। भाई अब देखो यहां पर एक मजे की बात है। देखो 2 और 15 तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पर 3/15 भाई 3 के टेबल में 15 आता है क्या। यस 3 5 जा 15, तो 3 1 जा 3 5 जा ऐसे कट कर दिया, तो 3/15 लोगे या 1/5 लोगे सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बोला जाए कि 3 कैप को कलर करो, 3/15 कैप को कलर करो, तो 15 कैप में से आपको 3 कलर करनी है। अगर ऐसे इसको शॉर्टकट में मीन्स कट करके शॉर्ट
छोटा आंसर ले आए तो 1/5 होता है। अगर आपको कहा जाए कि 1/5 कैप में कलर करो, इसका मतलब है कि 5 कैप अगर है तो 1 कैप में कलर करो, 15 कैप है तो 3 कैप में कलर करो। ठीक है ना। देखो 1/5 है तो इसको 15 पे पहुंचाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, अभी देखो यहाँ 3 से डिवाइड किया ना, तो 5 में 5 है, 1/5 है, तो 15 पे पहुंचने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और 1 3 जा 3, आ गया ना, यही आंसर आ गया वापस। चलो ऐसे ही समझते हैं आगे। भाई अगर आपको बोला जाए कि 4 कैप में कलर करो तो हम बहुत आसानी से सिंपल 4/15 ऐसे कलर कर लेंगे। पर अगर आपको कहा जाए कि 5 कैप में कलर करो, 5 कैप में टोटल कैप है 15, बराबर 5/15 में कलर करो तो 5/15 होता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यही तो हमें चाहिए। क्या आंसर आया? 1/3। समझ में आया कुछ? 5 कैप टोटल 15 कैप है, उसमें से अगर 5 कैप को कलर करना है तो 5/15 लिखेंगे, बराबर। इसे अगर शॉर्ट में मीन्स उसका शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म लाएंगे डिवाइड करके, कट करके, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 होता है। इसका मतलब ये है कि 5/15 कहो या 1/3 कहो, दैट इज एक्चुअली सेम। समझ में आया? अब 1/3 को हमें यहाँ पर यही तो दिया है, 1/3 कैप्स में ब्लू कलर करना है, 1/3 यानी कितनी कैप? 1/3 मतलब 5 कैप होगी 15 में से। कैसे? देखो 1/3 है, हमें पहुंचना है 15 पे, 1/15 हमें पहुंचना है 15 पर, तो 3 में से 1, तो 15 में से कितनी, यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क है। तो चलो 3 को 15 तक पहुंचाने के लिए 3 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 को, तो 3 5 जा 15। तो भाई फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर जो बॉटम नीचे लाइन के नीचे जो फिगर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले फिगर को भी करना ही पड़ेगा, ये तो रूल है। तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 1 × 5, अब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया? 5, 3 × 5 यानी कि 15, तो 5/15 हमारा आंसर आ गया। 1/3 कैप में कलर करना है, टोटल कैप 15 है, तो 1/3 को 15 में पहुंचाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। 3 5 जा 15 होता है तो न्यूमरेटर में 1 5 जा 5 होता है। इसका मतलब ये है कि 1/3 पार्ट की कैप में अगर कलर करना है, टोटल कैप 15 है, तो हमें 5 कैप में कलर करना पड़ेगा। तो चलो पहले 5 कैप में कलर कर देते हैं। ब्लू कलर करना है हमें, तो ये है मेरे पास ब्लू कलर। स्टार्ट कर देते हैं ऊपर से ही, यहाँ से राइट साइड से ही कर देते हैं, बराबर। तो देखो ये ब्लू कलर हो गया, ये दूसरे में भी, बराबर। फिर ये थर्ड, ये 4 और ये 5। देखो अब टोटल कैप हमारे पास 15 है और 15 में से 1/3 यानी कि 5 कैप को हमने कलर कर लिया ब्लू। अब कहा है 3/5, बराबर। 3/5 कैप को कलर करो ग्रीन। भाई 3/5 क्या आएगा? चलो करते हैं। 3/5 है, बराबर।
चलो ये जो हम समझते थे वो आगे बढ़ाते हैं। 5/15, 5 कैप को कलर करना अगर कहेंगे तो 5/15 होगा। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि 6/15 कैप को कलर करो तो हम लिखेंगे 6/15। देखो यहाँ पर भी इसका शॉर्ट फॉर्म ला सकते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 ऐसे हो सकता है। तो अभी न्यूमरेटर में बाकी बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 5, 2/5। अगर आपको बोला जाता कि 2/5 कैप को कलर करो ग्रीन कलर, तो हमें टोटल 6 कैप को कलर करना पड़ता। ठीक है, चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 7 कैप यहां पर करते हैं। 7/15 बराबर, तो हम लिखते 7/15। 7 कैप को कलर करो बराबर, तो यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 7 और 15 में कोई डिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर आपको कहा जाता 8 कैप को कलर करो तो 8/15 होता, तो भी हमें 8 कैप में कलर करना पड़ता बराबर। ऐसे ही अगर बोला जाए कि 9 कैप को कलर करो, 9 कैप आउट ऑफ 15 बराबर, तो देखो जैसे हमने यहाँ पर 6/15 में 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 5 जा, तो यहाँ पर भी 9 और 15 है तो 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, हमारा आंसर आएगा 3/5। भाई यही तो आंसर हमें चाहिए था कि भाई 3/5 कैप में हमें ग्रीन कलर करना है। टोटल कैप हमारे पास 15 है, तो कितनी कैप में कलर करना पड़ेगा? 3/5, यही तो है 9/15, यानी कि हमें 9 कैप में ग्रीन कलर करना है। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। 3/5 कैप में कलर करने के लिए हमें कहा है, हमारे पास टोटल कैप है 15, तो 5 में से 3 है तो 15 में से कितनी होती है, तो क्वेश्चन मार्क है। चलो 5 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई न्यूमरेटर में भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर में 5 3 जा 15 होता है, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 3 जा 9, समझ में आया? तो हमें 9 कैप में ग्रीन कलर करना है। 3/5 का मतलब है 9, तो भाई ग्रीन कलर स्टार्ट करो 9 राइट साइड से करेंगे। तो चलो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गई 9। भाई देखो सब हो गई, बाकी कुछ बचा ही नहीं कि बचा? हो गया, बचा ना, ये 1 कैप बच गई बराबर। चलो तो ऐसे हमने ये कैप में कलर कर लिया। ये देखो 9 कैप में कलर करने के लिए कहा जाए, टोटल 15 कैप अगर है तो 9/15, इसी का मतलब हम कहेंगे 3/5 बराबर। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हमें आंसर मिलेगा 3/5। इसी का मतलब तो 9/15 है। ये मैंने अलग तरीके से भी समझा लिया। चलो ऐसे अगर आपको बोला जाए कि 10 कैप को कलर करो तो 10/15 कर लोगे। 11 बोला जाए तो 11/15 का करोगे बराबर। अगर ऐसे बोला जाए कि 12 कैप को कलर करो 15 में से, तो हम कहेंगे 12/15। फिर यहाँ पर 12 और 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आंसर हमारा आता 4/5। इसका मतलब हर 5 कैप में से एक कैप छोड़ देनी है, 4 कैप को कलर करना है। भाई
इसी का मतलब तो ये है कि टोटल 15 कैप्स है, तो 15 में से 12 कैप को कलर कर लेना है, ओनली 3 को छोड़ देनी है। चलो, तो ऐसे हमने यहाँ पर समझ के कलर कर लिया। हाउ मेनी कैप्स आर लेफ्ट, कितनी कैप्स बच गई? तो भाई 1/3 यानी कि 5 और 3/5 यानी कि 9 कैप को कलर कर लेने के बाद ओनली 1 कैप लेफ्ट, तो हम लिख देते हैं 1 कैप। चलो, फिल रेड कलर इन दोज कैप्स। भाई दोज कैप्स क्या, यहाँ पे एक ही कैप बची है, तो यहाँ पर हम कलर कर देते हैं रेड, बराबर। चलो, अच्छा किया हमने बीच में पहले कलर नहीं किया, देखो अलग कलर हो गया बीच में, रेड। चलो, तो ऐसे हमने ये फ्रैक्शन जो भी दिया था वो समझ लिया, कलर भी कर लिया। नाउ क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में क्या कहा है, देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया है और सर्कल को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। रीड करते हैं क्वेश्चन 1। फिल येलो कलर इन 1/4 पार्ट ऑफ द व्हील। भाई ये व्हील है, इसे डिवाइड किया है पार्ट्स में। देखो कितने पार्ट्स है, पहले तो ऐसे देखने से ही मालूम हो जाता है, 4 पार्ट तो ऐसे ही दिख जाते हैं। देखो कैसे, ये मैंने डिवाइड किया ना, देखो हो गया, ये 4 दिखता है ना। तो अब 1/4 पार्ट अगर फाइंड करना है तो आप कोई भी एक पार्ट ले सकते हो। ये रहा, यहां तक का पोर्शन 1/4 होता है, बराबर। चलो, अभी हमने जो सीखा ना ऊपर कैप वाले में, वैसे अगर फाइंड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, इतना पार्ट ही 1/4 होगा। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कितने पार्ट है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पार्ट है भाई। चलो, अब देखो 1/4 पार्ट हमें चाहिए, 12 तक जाना है, टोटल पार्ट 12 है, बराबर। अगर 4 पार्ट में ही डिवाइड किया होता तो हम उसमें से 1 लेते, पर यहां तो 12 पार्ट है, तो कितना लेंगे? देखो 1/4 पार्ट है ना, तो अगर 4 पार्ट में ही डिवाइड होता, जैसे कि मैंने पहले बताया ना, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 पार्ट होगा। तो टोटल 4 में से एक पार्ट 1 पार्ट लेना है तो हम कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं। 12 के हिसाब से देखना है तो भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलो, हमें पहुंचना है 12 पर, तो 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जा 12। भाई डेनोमिनेटर को 3 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करो, 1 3 जा 3। यानी कि अगर 4 पार्ट होता तो 1 में कलर करना है, अगर 12 पार्ट है तो कलर करना है 3 में। हो गया ना? तो चलो, यहां पर अगर हम 4 कंसीडर करेंगे तो 4 में से ये 1 होगा। अगर 12 कंसीडर करेंगे तो 12 में से 3 पार्ट को कलर करना है, तो 1 2 3 दोनों तरीके से पार्ट तो एक ही होते हैं। तो येलो कलर करना है तो चलो करते हैं येलो कलर, यहीं पर लेफ्ट में ही कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया 1/4 येलो, ठीक है ना। अब तो मेरे ख्याल से आपको भी सब समझ में आ गया है। फिल ऑरेंज कलर इन 5/12 पार्ट। भाई 5/12, देखो ये टोटल पार्ट तो 12 है और 5 पार्ट में हमें ऑरेंज कलर करना है। यहाँ पर कोई शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, टोटल पार्ट 12 है, उसमें से 5 पार्ट फाइंड कर लो। 1 2 3 4 5 यहां तक करना है भाई ऑरेंज, बहुत बड़ा पार्ट। देखो, तो ये हो गया ऑरेंज 5/12, है ना। चलो, तो अब है 1/12 पार्ट। फिल ब्राउन कलर इन 1/12 पार्ट।
भाई ब्राउन कलर करना है 1/12, यानी कि 12 पार्ट में से 1 पार्ट। तो यहां पर कर लेते हैं ब्राउन। बराबर। चलो, तो 1/12 पार्ट ऑफ द व्हील इज ब्राउन। तो ये हो गया 1/4, यानी कि 3 पार्ट। बराबर। ये 5 पार्ट और ये 1 पार्ट। बराबर। हाउ मच पार्ट इज रिमेनिंग, कितने पार्ट बचेंगे? 1 2 3 बाकी बचे हैं। देखो यहां पर काउंट करो। येलो 1/4 यानी 3 पार्ट। ये 5/12 क्लियर ही है, 5 6 7 8, और ये 1/12 यानी 1 पार्ट, तो 9 पार्ट होता है। 10 11 12, 3 पार्ट रिमेनिंग। तो बाकी कितना बचा? तो हम कहेंगे 3/12 बचा। भाई 3/12 को अगर शॉर्ट में लिखना है तो कट कर लें, 3 1 जा 3 4 जा। बराबर ना। तो कितना बचेगा? 1/4। भाई 1/4 पार्ट बच गया, ये रहा 1/4। बराबर। चलो, अगर ये ब्राउन कलर हम यहां पर करते तो ये क्लियरली जो पहले हमने 4 पार्ट बनाया था ना वो बच जाता, पर ये वैसे भी सेम ही हो रहा है। ठीक है ना। चलो, तो आप अच्छी तरह से ये समझ चुके होंगे। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर 53 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 8। क्या कहा है एक्सरसाइज 8 में? देखो, मैच द फॉलोइंग। भाई यहां पर आपको मैचिंग करना है, और लेफ्ट साइड पे सेक्शन ए में 5 फ्रैक्शन डायग्राम दिए हैं, और ये डायग्राम नंबर में कैसे दिखाएंगे वो हमें मैच करना है। तो चलो, अब कितने 4 ही दिख रहे हैं। चलो तो और जरा जूम आउट कर लेते हैं। चलो, तो अब आपको ये पूरा टेबल दिख रहा है। सेक्शन ए में फर्स्ट डायग्राम में देखो 3 पार्ट बनाए हैं और 1 पार्ट शेडेड है। तो देखो 3 पार्ट में से 1 शेडेड है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1/3 लिखना पड़ेगा। 1/3 कहां पर है? ये रहा, देखो सी। तो हम ऐसे मैच कर लेते हैं। बराबर। ऐसे लिखना हो तो 1 के साथ हम सी को लिखेंगे। चलो, आंसर्स अगर ये लाइन नहीं करनी है तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब देखो नंबर 2 पार्ट बनाए हैं ये, और एग्जैक्टली 1 पार्ट को, 2 में से 1 पार्ट को शेडेड किया है, तो 1/2। बराबर। ये रहा ई में। बराबर। तो 2 के साथ ई। चलो, फिर है ये 3 नंबर। भाई 3 नंबर में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है, पर देखो यहां पर ऊपर का ये फिगर और ये सेम ही है, तो शेडेड पार्ट यहां पर 2 हो रहा है। देखो इसके साथ मैच करके अगर आप फिगर बनाओ, लाइन बना दो, तो देखो एक्चुअली ये 3 पार्ट ही हो रहा है ना। तो 3 पार्ट में से 2 पार्ट को शेडेड किया है, तो 2/3 हम कह सकते हैं। ये रहा डी पोर्शन, देखो डी है, ऑप्शन डी, 3 के साथ डी। चलो, अब है 4। अब 4 में देखो बिल्कुल अलग तरीके से डिवीजन किया हुआ है। बराबर। कैसे किया है? देखो, अगर हम ऐसे करेंगे तो देखो, अब है 4 नंबर। देखो बिल्कुल अलग तरीके से ये डिवीजन किया हुआ है।
मुझे तो लगता है कि ये 2 पार्ट अनशेडेड है, शेडेड नहीं है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। बराबर, कैसे 3 होना चाहिए? करते हैं, देखो ट्राई करते हैं बनाने की। हाँ, हो सकता है भाई। ये अभी मेजर किए बिना ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3 पार्ट शेडेड हैं और टोटल पार्ट गिनो आप, 1 2 3 4 5। ये 5 पार्ट इक्वल हो रहे हैं और इसमें से 3 को शेड किया है। 3/5 होना चाहिए। तो ये रहा सबसे फर्स्ट, यानी ए। तो हम कहेंगे 4 के साथ है आंसर ए। चलो, और 5 को देखो, 5 में तो 1 ऐसे क्रॉस किया है और 4 पार्ट बना है। 4 में से 1 पार्ट को शेडेड है, 1/4 आंसर आना चाहिए। ये रहा। तो 5 के साथ हमने मैच किया है बी को। चलो ध्यान से आप देख लो एक बार, ठीक है ना? ये 1/3 है, ये रहा। 1/2 है, ये रहा। बराबर। 2/3 है, तो ये रहा। बराबर। चलो देखो, मैं थोड़ा नजदीक ले लेता हूं, ठीक है? अब देख लो, पूरा देख लो ध्यान से, ठीक है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। भाई यहाँ पर पेज नंबर 54 पर एक और मैच करना है। यह है क्वेश्चन 8B। यहाँ पर भी डिवीजन शेडेड पार्ट दिया है और सामने फ्रैक्शन दिया है, मैच करना है। चलो ये 1 देखो, ये बहुत इजी है। देखो ये 1 में लगता है कि ऐसे 4 पार्ट बनाए हैं और 3 को शेडेड कर दिया, तो 3 आउट ऑफ 4। बराबर। 3 आउट ऑफ 4 कहाँ है? ये रहा बी। तो करो मैच ऐसे और लिख भी देते हैं 1 के साथ बी। चलो अब है 2। भाई ये 2 वाला फिगर बिल्कुल अलग तरीके से डिवीजन किया हो ऐसा लगता है, क्योंकि ये शेडेड पार्ट में डिवीजन दिखाया नहीं है। तो नीचे देखो भाई, 3 4 और 5 नंबर की फिगर देखो, ये जो पार्ट है ना अनशेडेड, ये यही है, ठीक है ना? तो हम ये सोच सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया होगा। तो चलो हम डिवीजन ये 4 नंबर के फिगर से बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे देखो, मैंने कैसे इसके साथ मैच किया और बना लिया। देखो ये भी स्केल से ये मैच किया और यहाँ पर देखो हो गया, और इसको भी मैच कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कि 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है और 4 पार्ट शेडेड है, यानी 4 आउट ऑफ 5, 4/5 ये रहा डी। तो चलो 2 के साथ डी। फिर यहां पर देखो ये फर्स्ट जैसा ही है, 4 पार्ट है, 2 पार्ट शेडेड है, तो हम कहेंगे 2/4। 2/4 ये रहा ई। तो 3 के साथ है ई, ऑप्शन ई। चलो अब देखो 4 नंबर में 5 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट को शेडेड किया है, तो 1/5 ये रहा सी। बराबर। चलो तो 4 के साथ ऑप्शन आएगा सी। और यहां पर देखो ये तो अब आपको मालूम ही है कि 5 पार्ट ही है, तो 5 पार्ट में से 2 पार्ट को शेडेड है, तो 2/5 ये रहा फर्स्ट, बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना? तो 5 नंबर के साथ ऑप्शन ए जाएगा। चलो तो भाई ये मैचिंग भी हमने कर लिया।
मैं थोड़ा नजदीक ले जाता हूं, ध्यान से आप देख लेना, ठीक है ना। चलो देखो, बराबर, ये है 3/4, ये रहा, ये जो 2 है वो है 4/5, ये रहा 4/5। फिर 3 नंबर में है 4 पार्ट में से 2 शेडेड यानी 2/4, ये रहा, देख लो 2/4 है ना। फिर 4 नंबर में 1/5 है, और ये लास्ट वाला 2/5, टोटल 5 पार्ट में से 2 पार्ट बिल्कुल ऊपर, ये रहा। चलो भाई, ये तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नाउ हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स। भाई यहाँ पर देखो, ये बॉक्स में डिवीजन सब दिखाया है और फ्रैक्शन नहीं लिखा है, तो हमें लिखना है। देखो फर्स्ट, देखो ये है 1 फुल, सो 1 लिखा है, बराबर। जो मैंने फ्रैक्शन बोर्ड दिखाया था ना, उसमें ये 1/1 था। 1/1 का मतलब ही 1 होता है। फिर ये हाफ हो रहा है, तो ये 1/2, तो यहाँ पर भी तो 1/2 ही होगा, है ना। और ये 1/2 का और आधा, यानी कि ये पूरे 1 का 4th पार्ट हुआ ये, तो 1/4, 1/4, तो ये भी तो 1/4 ही होगा ना। अगर आपको देखना है तो ये लाइन को मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूं, देखो देखो, ये पूरा 1 2 3 4 पार्ट होते हैं, तो ये रहा 1 2 3 4, तो ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, तो ये दो 1/4 जुड़ जाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ऐसे ही ये 1/4 ज्वाइंट होंगे तो ये हाफ होगा, 2 हाफ ज्वाइंट होगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देख लो, ये रहा, बिल्कुल यही तो दिखाया है बुक में, बराबर। ये 1 पूरा, ये 2 हाफ हो गए, ये 1 हाफ है तो 1 हाफ का भी हाफ लोगे तो 1/4 1/4 होगा। तो बाकी यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो हमें लिखना है 1/4 1/4, बराबर। यही बिल्कुल बिल्कुल यही यहाँ पर दिया है, देखो, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखो 1/5 लिखा है यहाँ पर, देखो 1/5। भाई 1/5 का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर पूरा बार बनाते तो ये पूरा 1 हो जाता। उसमें से ये 5 पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5, और 5 में से ये पार्ट 1 होता है, तो ये भी तो वही होगा 1/5 1/5 1/5 और ये 1/5, बराबर। अब देखो ये 1/5 का भी हाफ हो रहा है, 1/5 का हाफ, बराबर। तो इसे भी और डबल करना पड़ेगा। जैसे ये 1/2 का और हाफ किया तो 2 की जगह पे 2 2 जा 4 हो गया, बराबर, डबल हो जाता है ना। तो ये 5 1/5 है, इसका और आधा होगा तो 1/10 हुआ, तो ये भी 1/10 ही होगा, बराबर। यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर उन्होंने पार्ट नहीं दिखाया है, नहीं दिखाया है तो क्या करेंगे। अगर हमें दिखाना है तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये भी 1/10, ये भी 1/10, ठीक है ना। चलो, उन्होंने नहीं बताया तो हम बता देते हैं, 1/10 हुआ, ये देखो 10 पार्ट हो गए ना, हुए क्या 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए, तो सब 1/10 1/10 1/10 होता है। ये ऊपर की लाइन में 5 पार्ट है, 5 में से 1 पार्ट है तो 1/5 है। यहाँ पर टोटल 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से ये 1 पार्ट है, तो क्या करेंगे 1/10 लिखेंगे।
अब देखो कि जरा समझने वाली बात है। देखो ये है 10 पार्ट और ये है 5 पार्ट, बराबर। तो ये देख लो यहाँ पर 1/10, ये 1/10, 1/10, 1/10, तो ऐसे तो 2 पार्ट हो गया। तो अगर ये दोनों को कंबाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2/10। और 2/10 का मतलब ही तो 1/5 होता है। कैसे होता है 1/5? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 5 बचेगा, तो 1/5 हुआ ना, ये रहा। चलो आगे चलते हैं सामने। ये रहा, देखो यहाँ पर एक और टेबल दिया है सी। यहाँ पर लिखा है 1/3। भाई 1/3 लिखा है, मगर यहाँ बॉक्स 1 2 3 4 दे दिया है, यानी कि कुछ गलत है। गलत कुछ नहीं है, इसको हमें निकाल देना है। किसे निकालना है? ये, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये नहीं चाहिए। चलो तो अब सही है 1/3, यानी कि ये अगर पूरा बार होता ऐसा तो ये होल होता, फन फुल। उसमें से 3 पार्ट किया, 3 में से 1 तो 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3। जैसे आगे किया 1/3 का और हाफ हो जाएगा तो 3 का डबल हो जाएगा, बराबर। तो 1/6, 3 2 जा 6, 1/6, ये भी 1/6। तो यहाँ पर भी अगर करना है तो हम कर लेंगे 1/6, 1/6, 1/6 और ये भी 1/6 हो गया। अब जैसे वहां पर समझाया वैसे यहाँ पर भी समझ लो। ये देखो अगर इतना पार्ट कंसिडर करेंगे तो ये तो 2 पार्ट हो जाता है भाई। टोटल 1 2 3 4 5 6 में से ये पार्ट होता है 2, तो हम लिखेंगे 2/6। भाई 2/6 में डिवीजन होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या होगा 1/3, और यही तो है 1/3। देखो तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पार्ट को हम 2/6 कहेंगे या 1/3 कहेंगे, पार्ट तो वही है, एरिया तो इतना ही है। देखो चलो अब नेक्स्ट में क्या है जरा देख लो, नजदीक ले लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो डी, ये पूरा 1 ब्लॉक है, कुछ भी नहीं कहा है। फिर ये हाफ है, बराबर। तो हम इसे 1 में से 1 यानी कि 1 लिख देते हैं। इसे लिखना चाहो तो 1/1 भी लिख सकते हो। अब ये 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हुआ और ये 1 है इसमें से, तो 1/2, ये भी 1/2, बराबर। देखो 1/1 था, हाफ हुआ तो 1 2 जा 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि एग्जैक्टली 2 पार्ट होता है ना। तो यहाँ पर हमने फिर क्या लिखा 1/2। ये 1/2 का और हाफ होता है तो हमें 2 × 2 करना पड़ेगा, तो 1/2 2 जा 4। क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पार्ट वैसे भी हो रहे हैं, 4 पार्ट में से ये 1 पार्ट है तो 1/4, 1/4, ये भी 1/4। चलो फिर ये 1/4 का और आधा, तो यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को, तो 4 2 जा 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 1 टाइम लिख के दिया है, बाकी सब में भी लिख दो आप 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, चलो तो ये तो हमने कर लिया, बराबर। अब मैं वापस वो नहीं समझाता, 1/4 मतलब 2/8, बराबर ना, आप समझ गए ना। देखो ये पार्ट 2 है, अगर हम इतना पार्ट कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में से ये 2 हो रहा है, तो हम लिखेंगे 2/8। 2/8 का मतलब ही 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना होता है 1/4। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
भाई क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, देखो कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन। भाई जैसे इंस्ट्रक्शन में कहा है वैसे पिक्चर को कंप्लीट करो। 1 में क्या कहा है, द पिक्चर शोज 1/5 पिटल्स। 1/5 पिटल्स यानी टोटल 5 पिटल्स है, उसमें से 1 ही दिखाई है ऑफ ए फ्लावर। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर पिटल। पिटल यानी पंखुड़ी, देखो यहाँ पर 5 पंखुड़ी होनी चाहिए, पर 1/5 ये 5 में से 1 ही दिखाई है, तो बाकी की 4 हमें बनानी है। तो चलो बनाते हैं, बराबर। पहले थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। देखो ये ऐसे 1 हुई ना, तो ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा। देखो 1 2 3, और यहाँ पर ऐसे करेंगे तो 5। भाई ये परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने 5 डिवीजन एक बिल्कुल सेम डिवीजन करने की मीन्स ज्योमेट्री नहीं करनी है यहाँ पर। तो चलो बना देते हैं फिर ऐसे ही हाथ से, बराबर। वन हो गया, चलो फिर 3, ये देखो 4 हो गया, 1 2 3 4, और ये 5। चलो तो ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, बराबर। चलो आगे चलते हैं। ये क्या कहा है, देखो क्वेश्चन 2, द पिक्चर शोज 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। कंप्लीट द पिक्चर्स बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड। भाई 1/3 पार्ट दिखाया है, इसका मतलब ये है कि फैन में 3 ब्लेड्स है, बराबर। तो ये सेंटर हम समझ लेते हैं, इसे सेंटर, ये रहा हमारा फैन का सेंटर। चलो तो हमें, और ये उसका मिडल पोर्शन भी हमने बना लिया। तो चलो अब कहाँ होगा ये, एक तो ये नीचे होगा, तो बाकी यहाँ पर ऐसे हो सकता है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी आपको चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, परफेक्शन, क्योंकि हमें 3 पार्ट सर्कल का इक्वल डिवाइड करने के लिए तो ज्योमेट्री करनी पड़ेगी, पर यहाँ हमें जरूरत नहीं है। चलो तो हम बना देते हैं ये एक विंग, बराबर। कितनी लंबी है, देखो 0 से 3 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर, हो नीचे तक जा रहा है। चलो तो ये हो गई 1 मोर विंग। फिर यहां से भी बना दो, यहां से 3 सेंटीमीटर लेना है ना, तो ये रहा, यहां तक जाएगी। चलो तो ये हो गया पूरा हमारा फैन, बराबर। तो ये अगर 1/3 है तो ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है, हो गया, ठीक है ना। चलो पेज को टर्न करते हैं। 56 नंबर के पेज पर क्या है, देखो। अरे और ड्राइंग करना है भाई, देखो क्या कहा है, देखो द पिक्चर शोज 1/2 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स। भाई यहाँ पर 1/2 पार्ट ही दिया है, यानी कि हाफ पार्ट ही दिया है, तो बाकी का हाफ करना है। हाफ पार्ट में ही अगर 2 ब्लेड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि और 2 ब्लेड्स हमें बनानी है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ही बनानी पड़ेगी ऐसे तो, बराबर।
चलो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बनाया और फिर देखो ये यहाँ से ऐसे बनाते हैं, यहाँ सिर्फ ड्राइंग ही करना है, ये हो गया और यहाँ पर ये डॉट भी बना देते हैं, ठीक है ना। और इस साइड पे बनानी है बाकी एक और विंग, देखो कितनी लंबी है, 3 से थोड़ी ज़्यादा, तो हम 3 से थोड़ी ज़्यादा यहाँ तक जाने देनी पड़ेगी ना। चलो तो भाई ये फैंसी अलग हो गई, चलो तो यहाँ पर ये हमने बना दी विंग्स। चलो ये थोड़ी डिफरेंट है मगर उससे कोई तकलीफ नहीं है भाई। ये दोनों विंग 1/2 है तो ये मिलके 1/2 बराबर, ये 1/2 ये 1/2 होकर ये पूरा फैन 1 हो गया, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन है हमारे लिए। देखो यहाँ पर 4 नंबर में कार दिखाई है, चलो क्या कहा है रीड करते हैं। द पिक्चर शोज 3/4 पार्ट ऑफ द व्हील ऑफ ए कार, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग रिमेनिंग व्हील। भाई यहाँ पर 3/4 यानी कि 4 में से 3 व्हील दिख रहे हैं, तो बाकी कितना है, 4 आउट ऑफ 4 दिखने चाहिए। 4 आउट ऑफ 4, 4 1 जा 4 1 जा, यानी कि 1/1, और 1/1 का मतलब ही तो होता है 1। वो मैंने हमारी वो फ्रैक्शन ट्रे में दिखाया था ना। चलो 4 1 जा 4 1 जा, 1/1 बचा तो 1, हमें तो ये चाहिए बराबर। और यहाँ पर तो 3/4 दिया है, 4/4 करना है, यानी कि 1 व्हील बनाना बाकी है। तो ये रहा, ये बाकी की जगह बताई है, तो यहाँ पर धीरे से हम व्हील बना देते हैं, हाथ से ही बना देते हैं भाई बराबर। अगर आपको वो कंपास लेना हो तो ले सकते हो, पर अगर मेरे जैसे धीरे से बनाओगे तो बन पाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी कंपास की। देखो मेरा तो हो गया। चलो अब इसको थोड़ा अच्छा बना दो, बराबर बन गया, देखो बहुत बढ़िया हो गया। देखो मेरा ड्राइंग अच्छा है ना। चलो ये तो कार हो गई तो आपको यहाँ पर व्हील बनाना है। अब देखो 4 आउट ऑफ 4 हो गया, 4/4 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 5 नंबर में क्या कहा है, द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल, 3/5 ऑन ए ब्रांच, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर एप्पल्स। भाई कितने एप्पल होने चाहिए, 3/5 दिखाया है, 3/5 दिखाया है, यानी कि टोटल 5 पार्ट में से 3 दिखाया है, तो अभी बाकी कितना बच गया। पूरा अगर दिखाना है तो 5/5 दिखाना होगा, ऑल 5 दिखाना होगा बराबर, तभी तो ये पूरा होगा ना। तो कहाँ दिखाया, चलो ये यहाँ पर बना देते हैं। चलो एक ऊपर बना दे और एक नीचे बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो ये डंडी बना दी, ये ऐसे भी बना दिया। अब यहाँ पर शेप बड़ा बनाते हैं। देखो ड्राइंग तो आना चाहिए, मजा आता है ना ड्राइंग करने में तो भाई। चलो हो गया एक, और यहाँ पर ऐसे बनाया। चलो हो गया भाई। चलो तो अब ऑल 5 हो गया, 3/5 दिया था, 2/5 हमने बना दिया, तो ऐसे क्या हो गया, 5/5 हो गया पूरा। देखो ऑल 5 आर विजिबल। इसी के साथ हमने 10 नंबर की एक्सरसाइज पूरी कर ली।
वीडियो को अब यहाँ पर रोकते हैं। एक्सरसाइज 11 से आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।